Hello, this is Dr. Rajesh Khatri from the Oriental College of Technology, Bhopal, in the Department of Basic Science. Today, basically, we will be dealing with the solution of algebraic and transcendental by the Newton's Raphson method. This method is also known as a method of tangent also beta. अब इसको करेंगे कैसे अपन ध्यान से देखें. Let y is equal to f of x be any of the equations having a two consecutive values say a and b. हम यहाँ पे क्या करेंगे, f of a निकालेंगे, f of b निकालेंगे, such that if you are getting the opposite signs, then we can say that the root of the equation lies in between the intervals a and b. अब इसके बीच की वैल्यूज हमको निकालनी होगी, वो कैसे निकालेंगे? Now we are choosing a value x0 is equal to a plus b upon 2 and again find f dash of x. इसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का, x1 is equal to x0 minus f of x0 whole divided by f dash of x0. इतना निकालने के बाद अपन सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे. सेकंड अप्रॉक्सीमेशन इररिलेटिव ऑफ फर्स्ट से निकालेंगे. कैसे? नीचे देखिए, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 होल डिवाइड बाई f डैश ऑफ x1. ये कॉन्स्टेंटली रिपीट होता हुआ चल जाएगा. तो आई एम टॉकिंग अबाउट इन द nth अप्रॉक्सीमेशन के लिए x ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाई f डैश ऑफ x1. Now how it is applicable on the sums, देखते हैं अपन इसको next problem. We are having a problem that is find the real roots of the equations x raised to power 4 minus x minus 13 equal to 0 by the Newton-Raphson method corrected up to the 3 decimal places. जो given equation थी उसको हमने suppose कर लिया, y is equal to fx is equal to x raised to power 4 minus x minus 13. Taking x equal to 1. Substitute this x equal to 1 in the given function. 1 raised to power 4 minus 1 minus 13 which is equal to minus 12 which is negative. Similarly again हमने suppose किया x equal to 2. I got the result f of 2 which is positive. अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं या नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं, कैसे भी आते हैं, मतलब ऑपोजिट अगर होंगे, then we can say that the root of the equation lies between 1 and 2. Now calculate for f dash of x which is equal to 4x cube minus 1. Calculate for x0, that is 1 plus 2 divided by 2 which is equal to 1.5. This shows that 1.5 lies in between 1 and 2 such that f dash of 1.5 is not equal to 0. मेरे भाई अब सबसे बड़ी डाउट ये आती है कि अपन ने 1 कहाँ से लिया और 2 कहाँ से लिया. इट इज़ क्वाइट सिंपल. पहले आप 1 रखो, 2 रखो, फिर उसके बाद में -1 रखो, -2 रखो. इन चार के बीच में अगर नहीं आता है तो हम मूव करेंगे 3 के लिए और -3 के लिए. दिस इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड बाय विच ही कैन कैलकुलेट द लिमिट्स कि इसके बीच में दो पॉइंट्स अपन को मिल जाएंगे जिसके बीच में लिमिट्स बिलोंग करेगा. नाउ टू मेक द मोर क्लियरिटी इन द रूट्स हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पे चलते हैं. फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन दैट इज x1 is equal to x0 minus f of x0 whole divided by f dash of x0. Substitute the values man. x1 is equal to x0 minus x0 4 minus 4 times of x0 minus 13 whole upon 4 x0 whole cube minus 1. Substitute the values man. I got the result which is equal to 2.255. Now again move second approximation. Second approximation निकाला x2 is equal to x1 minus f of x1 upon f dash of x1. Substitute the values here. हमको x2 जो मिला वो कितना आया 2.0186. काम नहीं होगा और आगे मूव करते हैं. थर्ड अप्रॉक्सीमेशन पे गए. थर्ड अप्रॉक्सीमेशन यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेकंड से निकलेगा. x3 is equal to कितना हो जाएगा x2 minus f of x2 whole divided by f dash of x2. अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, हमारा रिजल्ट कितना है 1.9689. ऊपर देखो और नीचे देखो, x2 और x3 में कोई दोस्ती नहीं हो रही है. नीचे आके देखते हैं. आई एम मूविंग फॉर द फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन. इफ आई एम टॉकिंग फॉर द फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन तो यानी कि इररिलेटिव ऑफ का कैसे निकालेंगे, इररिस्पेक्टिव कैसे होगा, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन से होगा. दैट इज x4 इज इक्वल टू x3 माइनस f ऑफ x3 होल डिवाइड बाई f डैश ऑफ x3. हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, हमारा आंसर कितना है
1.9669। सेकंड और फोर्थ को ध्यान से देखें, 1.96 1.96 पे मैच कर गया आपका, यानी कि दो प्लेसेस तो आपके मैच कर गए लेकिन थर्ड नहीं कर रहा है। तो अपन उसको मैच करने के लिए फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन पे गए तो हमको मिला है x5 इज इक्वल टू x4 माइनस एफ ऑफ x4 डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ x4। हमने अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी इसके अंदर में, आई गॉट द रिजल्ट। वो कितना है हमारे पास में 1.9669। घबराओ मत बेटा, फोर्थ और फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन में हमारे आंसर्स 3 डेसिमल प्लेस पे मिल गए। दिस शोज दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन up to 3 decimal places is evaluated within the limits of experimental error or mathematical error. We got the result which is 1.9669. Okay, thank you beta.